students, welcome back to my channel Learn with BB. Today I am going to read a very interesting chapter, that is 3 questions from your Honeycomb book. Okay, so quickly take out your book. It is written by famous Russian writer Leo Tolstoy. So let's start. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? एक बार एक राजा के मन में एक ख्याल आया कि अगर उसे इन 3 चीज़ों के अगर उसको आंसर पता चल जाए तो वो जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा. That he would never fail if he know the answer to these 3 questions. What are these 3 questions? Means what are these things were? So first of all, what is the right time to begin something? Now, what is the right time? What is the right time to begin something? अगर कोई चीज़ को हमें शुरू करना हो तो उसका सही समय कौन सा है? अगर हमें ये मालूम चल जाए तो वो काम कभी बिगड़ेगा ही नहीं, है ना? ये बात तो सही है. अब राजा ने तो सही सोचा था. दूसरा क्वेश्चन, विच पीपल शुड ही लिसन टू? अब किसकी सुने तो किसकी सुने, है ना? बहुत सारे तो पीपल है जो हमें एडवाइस देते हैं. हमारे जीवन में भी तो है, बहुत सारे लोग हैं जो हमें एडवाइस देते हैं. अब हम किन किन की सुने? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? एंड उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगा? ओके. नाउ द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस. अब इस क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए अब उसने क्या किया? अपना मैसेंजर पूरे किंगडम में भेज दिए, ठीक है. और उसने प्रॉमिस भी किया दैट इफ़ एनीवन who will give the answer to these 3 questions, he will give him money as a present. Okay, गिफ्ट के तौर पर वो कुछ रुपए उसको देगा. Many wise men came to the king, but they all answered to his questions differently. अब देखो, हर कोई आया और हर कोई अपना अपना आंसर उसने दिया. सबके आंसर सेम नहीं है, अलग होते हैं. सो किसने क्या क्या आंसर दिए, आइए पढ़ते हैं. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. सो किसी ने कहा दैट किंग शुड प्रिपेयर वन टाइम टेबल एंड ही शुड फॉलो इट स्ट्रिक्टली एंड ही शुड डू द थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट टाइम टेबल. ओके, उस टाइम टेबल के अनुसार वो अपना सब जो काम है वो करे. Only in this way, they said, he could do everything at its proper time. और इसी तरीके से वो अपना जो सारा जो काम है he can do at its proper time. सही समय पर वो अपना सारा काम कर सकता है. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. लेकिन दूसरे लोगों ने कहा ये तो इम्पॉसिबल है कि राइट टाइम कौन सा है ये पता करने का, है ना? क्योंकि कौन सा समय राइट है ये हमें कैसे पता चलेगा? द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स. सो अब उन्होंने कहा किंग शुड नोटिस all that was going on and he should notice what are the things that are going on and he should follow, he should avoid the foolish pleasures and always do whatever seem necessary at that time, and he should do whatever is necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men to help him act at the proper time. But some others suggested that he should have council of wise men. Okay, जो उनको बताएंगे कि कौन सा समय पर जो प्रॉपर टाइम है, कौन से टाइम पर क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए.
This is because one man would find it impossible to decide correctly without help from others. The right time for every action. Because it is impossible for one person, one man, to decide which moment is correct and which is correct for the king to do. So he needed the help. So he suggested that he should appoint some council of wise men, okay, not man. Now, council means a group of people chosen to give advice or to make rules. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king, therefore, would have to go to magicians. Now, see, some others said that, Acha, what will happen if something is necessary, if emergency is there? ठीक है ना, अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई अर्जेंट है, उसी वो काम करना है, अब फिर राजा तब क्या करेगा, है ना, कि वो काम उसी टाइम में करेंगे तो वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, अब ये कैसे पता चलेगा, और वो इम्पोर्टेंट है, वो करना ही है, तो इसके लिए तो वो किसी के लिए मदद भी तो नहीं ले सकता ना, कि दैट ही कुड नॉट वेट, है ना, काउंसिल ऑफ जो वाइज मैन है उनके डिसीजंस के लिए वो वेट भी नहीं कर सकता है. इसीलिए इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, है ना, कोई भी चीज़ के लिए जो राइट टाइम है टू डू समथिंग, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर. सो हम अगर फ्यूचर देख ले तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा राइट टाइम है, और फ्यूचर्स ओनली मैजिशियंस ही देख पाते हैं. इसीलिए किंग वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. सो किंग को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए. ये पहले क्वेश्चन का आंसर सब ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से दिया है. अब देखो, in their answers to the second question, some said that people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. A few other chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. अब देखो, जो दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या था, याद करो. दूसरा क्वेश्चन क्या था, मेमोरी इतनी खराब है. अच्छा देखो, विच पीपल शुड ही लिसन टू, ये दूसरा क्वेश्चन था, है ना, कौन से पीपल का, पर्सन के वो सुने. तो इस क्वेश्चन का आंसर सब ने अलग अलग दिया. किसी ने कहा कि राजा को तो काउंसलर्स की बात ही सुननी चाहिए, है ना, मेंबर ऑफ वाइज मैन, दोज हु गिव एडवाइस, दैट उन मंत्री लोगों की बातें सुनना चाहिए. लेकिन किसी ने कहा प्रीस्ट्स की कहना मानना चाहिए. बट किसी और ने कहा कि डॉक्टर्स जो हैं उनका कहना मानना चाहिए. लेकिन फिर भी जो कई और जो थे उन्होंने कहा नहीं, सोल्जर्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो उनका कहना मानना चाहिए. नाउ टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, others chose fighting, and yet other religious worship. So what is the third question? थर्ड क्वेश्चन क्या था, फिर से भूल गए ना, मेमोरी इतनी खराब है यार तुम लोगों की. What is the important thing for him to do? इंपॉर्टेंट थिंग उसके लिए क्या था, ये थर्ड क्वेश्चन है. दोबारा नहीं बताऊंगा, फिर बाद में मत कहना मैंने नहीं बताया. In reply to the third question, some said, see, साइंस इंपॉर्टेंट है, किसी ने कहा फाइटिंग्स इंपॉर्टेंट है, किसी ने कहा रिलीजियस वर्कशिप इंपॉर्टेंट है. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. अब देखो, क्योंकि आंसर्स इतने डिफरेंट थे, अब किंग was not satisfied. He was not satisfied with the answers, so he gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit. Now, अब
उसने क्या किया, अब वो कह रहा है चलो ये किसी का भी आंसर को मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, अब चलो मैं खुद ही आंसर ढूंढ लूँगा। अब इसके लिए अब उसने, वो कह रहा है कि चलो मैं किसी साधु जो है, साधु से एडवाइस लूँगा। हर्मिट, हर्मिट अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, बिकॉज दैट हर्मिट वॉज नोन फॉर हिज विजडम। ओके, द हर्मिट लिव्ड in a wood which he never left. He saw no one but simple people. So the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone. Now see, since the hermit used to live alone in the forest and he never left that place, एंड ही ऑलवेज मेट ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि वो उस जो जहाँ पर वो रहता था, जिस भी जंगल पर, वहाँ से वो कभी गया नहीं है ना। तो उसके पास सभी ऑर्डिनरी पीपल आते थे उस सलाह मशवरा लेने के लिए, और उनको वो सलाह देता था। अगर वो राजा जाकर के अपना असली रूप में अगर वो जाए तो उसको थोड़ी ना बताएगा, वो तो पहले से ही ज़्यादा और ज़्यादा हम्बल हो जाएगा, है ना। इसलिए राजा जो क्या किया, उसने अपना वेश जो है ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ ऑर्डिनरी पीपल, ओके, एज अ ऑर्डिनरी पर्सन, ओके। एक साधारण सा इन आदमी बन करके अपने जो बॉडीगार्ड्स थे उसको वो जंगल पे छोड़ करके अकेला ही चला गया। नाउ एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. जैसे ही वो हर्मिट के हट के पास पहुंचा, अब उसने देखा कि हर्मिट जो था वो अपना उसके हट के सामने जो ज़मीन थी, ग्राउंड था, उसका वो खोद रहा था, डिग कर रहा था. ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट एंड ही ग्रीटेड द किंग, है ना. उसने वो जो हर्मिट था उसने किंग को देखा और उसने उसको ग्रीट किया और फिर से वो डिगिंग करना कंटिन्यू किया. अब हर्मिट कैसा था? हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, और जैसे इसलिए इस वजह से जब वो काम कर रहा था तो उसके जो सांसें थी वो फूल रही थी, है ना. ही ब्रीथेड हेविली. जैसे हम कोई भी काम करते हैं देन वी पैंटेड ना, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से, लाइक दिस वी यूज्ड टू डू. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. अब उसने हर्मिट से कहा, मैं आपके पास आया हूँ मेरे 3 सवाल के जवाबों के लिए. मैं ये 3 सवाल के आंसर्स ढूंढ रहा हूँ और मैं आपके पास इनके आंसर्स के लिए आया हूँ. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most and what affairs are the most important? उसने फिर से 3 क्वेश्चंस बोले कि हाउ डू आई लर्न द राइट थिंग एट द राइट टाइम, है ना. सो जो कौन सा राइट टाइम में राइट थिंग कौन सा है उसको मैं कैसे मैं हाउ डू आई लर्न, ओके, और हाउ डू आई नो, एंड हु आर द पीपल हु आई नीड मोस्ट, and what are the things that are most important, what are the affairs that are most important. Hermit listened to the king but did not speak. Hermit ने सुना लेकिन कुछ नहीं बोला. He went on digging. अब वो कंटिन्यू किया उसने खोदना. उसने कहा, you are tired, said the king, है ना. अब जो किंग था उसने कहा, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पीड एंड वर्क इन योर प्लेस. अब ये जो भाला है, स्पीड है, ये मुझे दे दो, है ना, मैं काम करता हूँ. सो अब स्पीड क्या होता है? जो खोदने के काम आता है ना. थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पीड. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. अब उसने उसको स्पीड दे दिया और वो जाकर के बैठ गया. अब जो है राजा उसके जगह डिग कर रहा है. When the king had dug 2 beds, he stopped.
अब यहाँ पर बेड क्या होता है, बेड जो होते हैं वो ग्राउंड के जो पैचेस होते हैं, जो होते हैं ना रोज जो बनाते हैं जिसमें हम डिग करते हैं, उसके बाद कोई फसल उगाते हैं, तो वैसे ही उसने 2 बेड्स उसने खोदा. देन ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और वो रुक गया, फिर से उसने वो दोबारा वही क्वेश्चन पूछे. दिस टाइम ऑल्सो द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप. इस बार भी हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया और वो खड़ा हो गया. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड. अब उसने अपना हाथ बढ़ाया स्पेड लेने के लिए. सेड नाउ यू रेस्ट लेट मी वर्क. अब तुम आराम करो, मुझे काम करने दो. लेकिन उसने उसका कोई आंसर नहीं दिया, है ना. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन अब जो राजा था उसने क्या किया, नहीं 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 आप बैठो, रहने दो, मैं ही खोदता हूँ. 1 घंटा गया, देन अनदर, दूसरा गया, है ना. ऐसे घंटों पर घंटे बीतते गए. The sun, 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees. And at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. अब see, 1 घंटा गया, फिर दूसरा. ऐसे करते करते द सन वेंट डाउन. अब जो था सनसेट भी हुआ, है ना. एट लास्ट उसने, वो जो राजा जो था, ही वॉज लिटिल बिट एंग्री, मीन्स वो तिलमिला उठा था, क्योंकि उसको तो उसके आंसर्स मिल नहीं रहे थे और वो काम करवा रहा था, वो खुद भी कर रहा था. तो उसने खोदना बंद किया और उसने वो ग्राउंड पर रखा स्पेड. और उसने कहा, वाइज मैन, मैं आपके पास आंसर्स के लिए आया था, अगर आपको आंसर्स नहीं पता तो आप बोल दें, मैं घर चला जाऊंगा. बट इतने में हर्मिट क्या बोलता है, देखो कोई दौड़कर आ रहा है. यहीं पर हमारा जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का यहां पर खत्म होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, मीन्स दिस फर्स्ट पार्ट, है ना. Now here see comprehension check is there. So chalo, let's discuss the comprehension check. Question number 1. Why did the king want to know answers to 3 questions? King को 3 questions के आंसर क्यों जानने थे? Why did he wanted to know the answers to 3 questions? Just recall and tell the answer. Okay, I'm telling. The king wanted to know the answers to the 3 questions because he thought that he would never fail if he knew the answers to the 3 questions. Okay. Question number 2. Messengers were sent throughout the kingdom. For what? To fetch wise men, to find answers to the question, to look for the wise hermit, to announce a reward for those who could answer the questions. Option number 4 is the correct answer option. Okay, to announce a reward for those who could answer the question. Now in my next video I will discuss and teach the second part of this story. Okay, till then, take care and bye. Hope you have liked my video. So for more videos like this, just subscribe to my channel and do comment. Okay, I know you will if you like my video. So thank you. Thanks for watching. Bye.